تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری اہم ترین خبریں رکھنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 51 لاکھ کا توہین رسالت گستاخ رسول نوین کے سر پر اعلان کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا ہے یو پی سے۔ کس طرح 1 کروڑ 10 لاکھ روپے تحصیلدار غیر قانونی ہاتھوں سے ACB کے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اسرائیل لگاتار ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہے، ایک 3 سالہ بچی کو زخمی کر دیا ہے۔ رام مندر بیان پر سنجے سنگھ کے خلاف ایک دن میں 5 اضلاع میں FIR درج ہوئے ہیں۔ UAE کے خلاف فلسطین میں لگاتار احتجاجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ نریندر مودی نے آج 15 اگست کے موقع پر کیا کچھ بیان دیا ہے اس پر بھی بات ہوگی اور اہم ترین خبریں پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے اس لیڈر کی بات کرتے ہیں جس لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنگلور میں جو حالات پیدا ہوئے توہین رسالت کو اور گستاخ رسول اور اس طرح جو غصہ پھوٹا، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی بات کو لے کر کے میرٹھ سے ایک مسلم لیڈر نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جو شخص نوین کا سر لے کر کے آئے گا اس کو 51 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ شہزیب رضوی جو کہ سماجوادی پارٹی کے سابق رکن کہلائے جاتے ہیں اور ایک سماجی کارکن بھی کہلائے جاتے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا اور یہ بہت زیادہ وائرل بھی ہو گیا تھا۔ اب جو ہے میرٹھ کے پھلوادہ شہر سے رسول پور دیہات سے تعلق رکھنے والے رضوی کو اس وقت پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور جو ہے چھان بین کے لیے اور تحقیقات کے لیے ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ یہ خبر جو ہے میرٹھ سے آ رہی ہے۔ انہوں نے 51 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا گستاخ رسول نوین کے سر پر۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ایک اور اہم ترین خبر کی، اور یہ خبر جو آ رہی ہے وہ حیدرآباد سے آ رہی ہے۔ ایک تحصیلدار کس طرح سے جو ہے رشوت لیتا ہے اور رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، وہ یہ تصویر بیان کرتی ہے۔ دراصل ACB کو جو ہے یہ ہاتھوں تلنگانہ میں غیر قانونی رقم حاصل کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ یہ آپ تصویر میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے بتایا جا رہا ہے۔ ایک زمین جو 28 ایکڑ زمین تھی، متنازع زمین تھی، اس کو رجسٹر کرنے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو اندرونی سطح پر ہوتی ہیں اس کو جو ہے بحال کرنے کے لیے اور اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے تحصیلدار ناگا راجو نامی شخص نے جو ہے پیسے لیے تھے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے رشوت کے طور پر۔ اب یہ تصویریں خوب وائرل ہو رہی ہیں اور تحصیلدار کا یہ کس طرح پکڑا گیا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر۔ ناظرین، اسرائیل لگاتار جو ہے اس وقت ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے زیر محاصرہ غزہ کی پٹی کے مختلف مقامات پر بمباری سے ایک 3 سالہ بچی زخمی ہو گئی ہے۔ وہ تصویریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ذریعے دعویٰ کیا کہ حماس کی بحری قوتوں سے تعلق رکھنے والے ایک اڈے سمیت اس کی بنیادی ڈھانچے اور نگران دفاتر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور کہا کہ ہیلیم گیس کے غبارے اسرائیل کی حدود کے اندر بھیجنے کے جواز میں حملے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف چھوٹی بچیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، نہ وہاں کے کسانوں کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کی زیتون کے درختوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، غزہ پٹی میں سکون کا ماحول نہیں ہے۔ ایسے میں UAE اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ UAE کے خلاف کس طرح غصہ پھوٹ پڑے گا یہاں کے لوگوں کا۔ اسی طرح کی تصویریں آ رہی ہیں، دیکھیے کہ کس طرح سے جو UAE کے خلاف اس وقت مسجد اقصیٰ کے سامنے جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ وہاں کے امیر کی تصویریں اور
नेतन्याहू की, ट्रंप वगैरह की तस्वीरों के जो है चप्पल रख करके और जला करके उनको मार करके ये सब जो है इस वक्त एहतिजाजात चल रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के किसानों को किस तरह सताया जा रहा है। एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है फ़िलिस्तीन से, ये नमाज़ पढ़ने का मंजर है। यहाँ पर इस्राएली फ़ौज ने आज फ़िलिस्तीनी किसानों को उनकी ज़मीन पर काम करने से रोक दिया था और जबरन उनको उन्हीं की ज़मीन से निकाल बाहर कर दिया। इस दौरान फ़िलिस्तीनी किसानों और इस्राएली फ़ौज में झड़प भी हुई, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो वहीं पर फ़िलिस्तीनी मुसलमानों ने अल्लाह के हुजूर सजदरेज़ हो गए और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ पूरी कैमरा यहाँ पर लगे हुए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलिस्तीन में वहीं के लोगों को, वहीं के मकामी लोगों को इस्राइल की जालिम फ़ौज हो या सहयूनी फ़ौज जीने नहीं दे रही है, ज़मीनें छीन रही है। किसानों से जैतून के जो बागात होते हैं या तो उनको आग लगा देती है या फिर उनको खेती करने नहीं देती। ऐसे में जो यूएई इस्राइल को तस्लीम करके पूरी उम्मत मुस्लिमा के पीठ पर छुरा घोंपा है और गद्दारी की है। आप एक एक खबरें जो फ़िलिस्तीन से निकल के आते हैं, हर दिन जुल्म सितम की कहानी यहाँ पर रवा रखी जाती है। ऐसे हालात में पता नहीं अरब हुक्मरानों को क्या हो गया है कि वो जो है इन मजलूम फ़िलिस्तीनों का सपोर्ट करने के बजाय जालिमों के साथ जा कर के खड़े हुए हैं, जिनकी जुल्म सितम की कहानी और दास्तानें लिखी पड़ी हैं और तारीख भरी पड़ी हुई है और कई कई सफ़ात लिखे हुए हैं। और फिर कुरान भी कहता है कि ये आपके दुश्मन हैं, लेकिन जा कर के अब जो हालात पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही अंदोनाक, तशवीशनाक और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं संजय सिंह की। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 5 अजला में एफआईआर दर्ज की गई है। संजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट लिखकर इसकी इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि एफआईआर लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बागपत और सनत कबीर नगर में दर्ज कराई गई है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा पर इल्ज़ाम है कि वो रियासत की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करके बदअमनी फैला रहे हैं और समाज में मुनाफरत को फ़रोग़ दे रहे हैं। वाज़ेह है कि संजय सिंह ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर के लिए जाने वाली भूमि पूजन तकरीब में दलितों को मदऊ न किए जाने पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा करके बीजेपी हुकूमत ने दलितों को नज़रअंदाज कर दिया। अलीगढ़ और लखीमपुर खीरी में दर्ज एफआईआर के हवाले से पुलिस ने कहा कि आप रहनुमा पर इल्ज़ाम है कि वे नफरत फैला रहे हैं और कई ज़ातों को रियासती हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। इस तरह इल्ज़ाम लगा करके उनके खिलाफ इस वक्त एफआईआर दर्ज कराया गया है। नाज़रीन, आइए अगले खबर की जानिब बढ़ते हैं और इस वक्त में एक ख़ास खबर मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी ने अपने दौरे सदारत में जो कहा था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये नाजिला महमूद हैं जो मोहम्मद मुर्सी की बेवा हैं और उनके बेटे अहमद का इंटरव्यू लिया गया है। तो उन्होंने साफ तौर पर अपने अहले ख़ानदान से कहा था कि अपने ख़ानदान को आगाह भी कर दिया था कि मगरिब उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और मगरिब किसी इस्लाम पसंद को मिस्र पर हुकूमत करने भी नहीं देगा। ये उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में जो है साफ तौर पर जो कह दिया था अपने अहले ख़ानदान से। तो उसी वक्त आप महसूस कर सकते हैं कि मोहम्मद मुर्सी के ख़िलाफ़ किस तरह की जो है साजिशें रची गई थी और किस तरह वहाँ मगरिब जो है यहाँ की हुकूमत को जो है गिराने के लिए किस तरह की साजिशें रची थी, वो सारी बात सामने आ चुकी है। ये अब ताज़ा उनका इंटरव्यू चूँकि छाया हुआ है तो एक मरतबा फिर मोहम्मद मुर्सी और उनके अहले ख़ानदान जो है सुर्खियों में छाया हुआ है, बिलखुसूस मिस्र में। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर आज 15 अगस्त है और आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबादी हमारी तरफ से और सीधी बात टीम की जानिब से। आइए देखते हैं कि आज लाल किले से पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाने वालों को मुनासिब जवाब दिया जाएगा और लद्दाख में दुनिया ने इसकी झलक देखी है। पीएम मोदी ने 74वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से परचम कुशाई के बाद मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि पूरा मुल्क वतन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जोश व जज्बे से लबरेज है। मशरिक़ी लद्दाख में चीन के साथ तकरीबन 3 माह तक जारी रहने वाले तनाज़े पर उन्होंने कहा कि यलवसी से लेकर यलियसी तक मुल्क की खुद मुख्तारी व सालमियत पर जिस किसी ने आंख उठाई है, मुल्क की फ़ौज ने उसका उसी की ज़बान में जवाब दिया है। हमने देख लिया है कि लद्दाख में क्या हुआ था और आप लोगों को भी ये खबरें सामने हैं। बल्कि इसके अलावा उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी बात कही। उन्होंने कहा कि 1-2 नहीं बल्कि 3-3 कोरोना वैक्सीन टेस्ट के मुख्तलिफ मराहिल में हैं और जैसे ही साइंसदानों से हरी झंडी मिलेगी मुल्क में इन वैक्सीन को बड़े पैमाने पर तैयार करने की पूरी तैयारी की जाएगी, बल्कि तैयारी में हैं। इसके अलावा भी नाज़रीन उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को भी सल्यूट किया और मुजाहिदीन आज़ादी के साथ भी सल्यूट किया। लगभग 1.5
घंटे तक उन्होंने जो है इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दिया। आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी 15 अगस्त की भरपूर मुबारकबादियाँ। हमें उम्मीद है कि जो है आज़ादी के असल मतलब को हम लोग पहचानेंगे और वो लोग भी पहचानेंगे जो लोग इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, क़ियादत कर रहे हैं, लीडरान हैं, मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भी आज़ादी के मतलब को समझेंगे जो अदलिया के निज़ाम पर फाइज हुए हैं। वो लोग भी आज़ादी के मतलब को समझेंगे जो पुलिस महकमे में हैं और जो बेकसूरों को गिरफ़्तार करके जो है जेलों में बंद किए हुए हैं। उनको भी आज़ादी का मतलब समझाने की कोशिश की जाएगी। उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की जाएगी जो तालीम पर गासिब होकर के एक अलग ही सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। हम आज़ादी की बात और आज़ादी का चेहरा उनको भी दिखाएंगे जो लोग इस वक्त अक़लियतों पर जुल्म करके उनको जेल की सलाखों पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी जालिम हुक्मरानी की वजह से मज़लूमों पर और बेकसूरों पर लगातार जुल्म ढा रहे हैं। ये आज़ादी का तो मतलब नहीं हो सकता। हमें उम्मीद है कि आप आज़ादी का मतलब भी समझेंगे भी, दुनिया को समझाएंगे भी और जालिम हुक्मरानों को भी बताएंगे कि यौम आज़ादी का असल मतलब क्या होता है। मुझे यहाँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी